HK24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। बसों कल्याण में जमात इस्लामी की जानिब से इंटरेस्ट फ्री बसों कल्याण सहूलत सौहार्दा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का शानदार ग्रैंड ओपनिंग किया गया। इस ग्रैंड ओपनिंग को जमात इस्लामी के स्टेट सेक्रेटरी मौलाना यूसुफ कुन्नी और डॉक्टर घनलिंग रुद्रमणि स्वामी जी के हाथों किया गया। इस मौके पर तमाम आए हुए मेहमानों ने जमात इस्लामी की टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और इनकी समाजी खिदमात को सराहा। प्रोग्राम के अख्तिताम पर तमाम गेस्ट और हाजरीन का शुक्रिया अदा किया गया और बसों कल्याण के अवाम से अपील की गई कि वो इस सोसाइटी से भरपूर फ़ायदा उठाएं। नोबल पब्लिक स्कूल एडमिशंस आर ओपन। इल्म ही आदमी को इंसान बनाता है। हॉरिजन इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल एम्पावरिंग ब्राइट फ्यूचर एडमिशंस आर ओपन। तो शायद इसमें ना अग्रीमेंट की बात है, शायद ना इसमें लैंड की बात है, शायद ना इसमें प्रॉपर्टी की बात है, इसमें इंसानियत की बात है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो और एक मैं बात सुना जस्ट मैं आते ही नरसिंह रेड्डी गजलीगांव साहब बता रहे थे, इसमें जात है ना पात है ना धर्म है ना रिलीजियस है। क्या बात है ये बसों कल्याण में, इसीलिए बसों कल्याण अमन और शांति से जी रहा है। बसवा कल्याण में ये पहला नाम सुन रहा हूँ 0% इंटरेस्ट का बैंक। ये सपना था जमाते हिंद इस्लाम का। इस बैंक को लेकर इस बैंक में एक वर्ड छिपा हुआ है, उसका नाम है सहूलत। सहूलत में ही सब कुछ छिपा हुआ है। जब भी बैंक बनता है तो बैंक में एक बैलेंस शीट होता है, डिपॉजिट और लोन। लोन का मतलब है इंटरेस्ट, लेकिन जो भी बैंक चलना है तो बैलेंस शीट पर चलता है। इस बैंक में मैं देख रहा हूं तो इस बैंक का पूरा बैलेंस शीट इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस का मतलब यह है कि पाप और पुण्य से मैं तुलना करता हूं। Knowledge Park The Creative School admissions are open from LKG to 10th standard. Free uniform for new admission students. ವಹಲ್ಲಲ್ಲಾಹುಲ್ ಬಯ್ಯ ವ ಹರ್ರಮುರ್ ರಿಯಾ ರಿಬಾ. ಆ ಜಗದೊಡೆಯ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟದು ಅದನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಸಹಲತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸವಲತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು 10 ತಿಂಗಳದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸವಲತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಹಲತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ತಾವೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 1%, 2%, 3%, 4, 5 ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ 0% ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸವಲತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳ ಬಂದಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 0% ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪೋರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು 10,000, 20,000 ಅಥವಾ 1 ಲಕ್ಷ ಏನು ಬಡವ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗ, ಅದು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಸವಲತ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4% ಬಡ್ಡಿ, 5% ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೇನು ಬಡ್ಡಿ ಹಚ್ತೀವಿ. ಆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿ 1 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಸಂಘಟನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 0% ಏನು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನನಗನಿಸ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ಯಾರ್ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೊಡ್ಡದು. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, धन से किताब खरीद सकते हैं, धन से किताब खरीद सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं। धन से आभूषण खरीद सकते हैं लेकिन सौंदर्य नहीं। धन से औषध खरीद सकते हैं लेकिन आरोग्य नहीं। धन से सब खरीद सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ
ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡೇವಿ ಅವಾಗ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಬೆಸುಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಪಾಷಾ ಸರ್ ಯಾವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಕಾಯಕವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ. जमात इस्लामी हिंद पूरे मुल्क में इसने काम को शुरू किया गवर्नमेंट के एक्ट के मुताबिक। 1997 का जो एक्ट है सौहार्दा का, उसके अंडर में यह शुरू किया। एक्ट में यह है कि आप 0% से लेकर 18% तक आप बड्डी ले सकते हैं। हमने यह समझा कि 0 पे लाएंगे, हम लाए 0 पे। अब बड्डी व्यवहार को 0 पे लाने के लिए जमात इस्लामी इस मुल्क में है, हम लाएंगे। कर्नाटक में 10 सोसाइटी पहले से हैं, कर्नाटक स्टेट में। ये आज जो सोसाइटी इसका इफ्तिताह हो रहा है अभी 11वीं सोसाइटी है ये। 10 सोसाइटी के बारे में मैं आपको बताऊं कि 30,000 इसके मेंबर हैं पूरे कर्नाटक, 30,000। उसमें 10% नॉन मुस्लिम भाई, हिंदू भाई है 10%। एक साल में लास्ट 24-25 में 125 करोड़ रुपयों का टर्नओवर किया हमने, 125 करोड़ रुपयों का। और खुशी की बात यह है जितने मेंबर्स इसमें हैं 98% लोगों ने पूरा अपना जो भी कारोबार है पूरा करते हैं। 2% लोग अब भी ऐसे हैं जरा आगे पीछे करते हैं, लेकिन नुकसान उन्होंने नहीं किया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह सोसाइटी एक नहीं, ऐसे हजारों सोसाइटी होने की जरूरत है, हजारों सोसाइटी होना चाहिए। आपको मालूम है कि अभी बात हमारे बीच में आई ना, चक्कर बड्डी, अब तो मीटर बड्डी है, मीटर बड्डी। चक्कर बड्डी खत्म हो गया, मीटर बड्डी, चक्कर बड्डी नहीं। अब ऐसी हालत में आपसे खासकर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, एक तो यह है कि यह सोसाइटी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सोसाइटी केवल मुस्लिमराಗಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದವರು ಈ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬಹುದು। इसके लिए सब मिलजुल के काम करना होगा। अभी हमने सुना संगा क्या है मालूम? हमने बहुत स्टडी किया संगा में गर्दन दबाया जाता है, गर्दन मार दिया जाता है, गरीब आदमी मर जाता है, उसकी जिंदगी अच्छी नहीं है। ऐसी सूरत में यह जो सोसाइटी का हमने इफ्तिताह किया है 400 मेंबरों के साथ, आइंदा साल आपने 1000 कहा, बहुत अच्छी बात है। हम कहेंगे कि और तेज बढ़ना चाहिए, इसके अंदर बहुत बढ़ना चाहिए। आप बढ़ाइए, मेंबर बनिए। इसमें मेंबर बनने वाला कर्ज लेना जरूरी नहीं है, लोन लेना, कर्ज लेना जरूरी नहीं है। दूसरों को मदद होती है, दूसरों को हेल्प होता है। इस ख्याल के साथ अगर हम काम करेंगे, यकीन मानिए कि बसवा कल्याण की ये जो सोसाइटी आज हमने शुरू किया है बहुत हाई लेवल पे जाएगी। हजारों लोगों की मदद करने का हम लोगों को मौका मिलेगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, जितने धर्म हमारे देश में है ये शांति के लिए, सौहार्दा के लिए, एक दूसरे को प्रेम के लिए और एक दूसरे को मदद करने के लिए धर्म होते हैं। अगर हम एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे फिर हमारे समाज कहां जाएगा, सोसाइटी कहां जाएंगे। बहुत अच्छी बात, मुझे आज एक अच्छी बात क्लिक हुई। जितने भी सोसाइटीज हैं बड़े बड़े मालदार लोग मिलकर सोसाइटी बनाते हैं, है ना? बड़े लोग जितने भी शहर में गांव के अंदर पैसे वाले लोग हैं वो सब मिलकर के संघा बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं और बड्डी लेने की वजह से उसका जो भी फायदा होगा, इंटरेस्ट से आने वाले पैसे वो डिवाइड कर लेते हैं। सही है? ये जो सोसाइटी है ना, ये सोसाइटी मालदार लोगों की नहीं है। हम जैसे लोग 550 रुपये, 1000,
1100 रुपये देने वाले आदमी शेयर होल्डर बन जाएगा इसका। गरीब आदमियों का पैसा ज्यादा जमा होगा और ये पैसा गरीब लोगों में ही चला जाएगा। आखिरी बात मैं कहता हूं, हमारे जो सोसाइटी चल रहे हैं पूरे कर्नाटक में, पूरे इंडिया में चल रहे हैं, कर्नाटक की बात मैंने कही, हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं शेयर होल्डर बनाने के लिए। शराब पीने वाले को शेयर होल्डर नहीं बनाया जाएगा। नहीं, तुम शराब पी के मर जाओ हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी में मेंबर नहीं बनेगा, कोई भी आदमी रहने वो। दूसरा, घर में बीवी को बच्चों को मारने वाला मेंबर नहीं बनेगा। नहीं, मेंबर नहीं बनाएंगे हम उसे। अगर मालूम हुआ कि हमारा शेयर होल्डर जो बीवी को मार रहा है तो उसे हटा देंगे हम सोसाइटी से उनको पैसे देकर के वापस भेज देंगे, तुम चले जाओ यहां से। बीवी बच्चों को मारने वाला जो आदमी भी है उसे हम शेयर होल्डर नहीं बनाएंगे। नंबर 3, अगर वो बच्चा है उसे काम को भेज रहा है, बच्चे को स्कूल को नहीं भेज रहा है, उसे भी हम शेयर होल्डर नहीं बनाएंगे। ठीक है ना? बच्चा है घर में, होटल को भेज रहा है काम करने के लिए, लेबर वर्क के लिए भेज रहा है, चाइल्ड लेबर, हम ऐसे आदमी को भी ये सोसाइटी का शेयर होल्डर हम नहीं बनाएंगे। ठीक है ना? ये 3 बड़े कंडीशंस हैं। उसके बाद आखिरी बात यह है कि जो लेता है देने और लेने में उसका कोई ज्यादा वो नहीं होनी चाहिए। बस इतनी बातें हैं। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि ये 400 बहुत कम है, 4000 बनाइए, आप लोगों में फैल जाइए, जितना लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। यकीन मानिए कि इसके जरिए से पूरे बसवा कल्याण में शांति का एक वातावरण बनेगा। सिर्फ शांति ही नहीं, गरीब आदमी को भी जीने का मौका मिलेगा और अपने बच्चों को अच्छी तालीम वो दिला सकेगा। मुझे बहुत खुशी है, मैं पूरी टीम को, असलम जनाब साहब और जुल्फिकार और उनकी पूरी टीम को आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और अपने रब से, मालिक से दुआ करता हूं कि ये सोसाइटी फैले फूले और गरीबों की सबसे ज्यादा ये मदद कर सके। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।